a question. This question says use induction to prove that n cubed minus 7n plus 3 is divisible by 3. For all n belonging to natural numbers. So when we see this question, obviously our 3 steps which are required, we will do all 3 steps. First is the base step. So n is equal to 1 ले लेंगे और इसकी जो वैल्यू है इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज डिनोटेड बाई Pn. तो जो P1 होगा वो होगा 1 cube minus 7 plus 3. So this would become minus 3 finally, which is divisible by 3. If you want for n is equal to 2 also, you can do that also. For n is equal to 2, P2 will be equal to 2 cube minus 7 plus 3. So 8 plus 3, 11 minus 7, 4. ये तो डिविजिबल नहीं है. So Sorry. 7n and हाँ 7 सॉरी to multiply by 7n है, 7n है, सॉरी 7 into 2, यहाँ पे 7 into 1 था. So 8 plus 3, 11, 11 minus 14 minus 3. So still divisible by 3. तो इन जनरल मैंने 1 के बाद 2 भी इसलिए ले लिया कि और हो जाए, नहीं तो 1 काफी है. और n इज इक्वल टू k के लिए हमने ये अज्यूम कर लिया कि दिस इज ट्रू. सो पी के इज डिविजिबल बाई 3. That means that is k cube minus 7k plus 3 is equal to multiple of 3. तो 3 into m बोल देते हैं, where m belong to some integer. तो n is equal to k plus 1 का टास्क रह गया ये प्रूफ so your voice is not clear. हम क्या करें, पी के प्लस 1 कैलकुलेट करते हैं. ये हो जाएगा k प्लस यस So your voice is not clear. Am I audible clear? Okay. To all of you it is not clear, some of you. Can anyone listen to me? Yes, so now you're audible. So now it is audible. Okay, Ayushi. So it is audible to everyone, na? Yes, sir. Okay, okay. So k plus 1 whole cube minus 7 k plus 1 plus 3. इसको अगर एक्सपैंड करते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 7k minus 7 plus 3. So this would be equal to k क्यूब, एक तो k क्यूब यहाँ से ले लिया, माइनस 7k यहाँ से ले लिया, और
+3 यहाँ से ले लिया, और बचा हुआ क्या है, +3k +3k स्क्वायर और -7 + 1 is -6. So this is equal to, finally, since we have k cube minus 7k plus 3 is equal to multiple of 3, so k cube minus 7k plus 3 is multiple of 3, plus if you take 3 from all of them, you can take it as common, m plus k square minus 2. So yes, it is a multiple of 3 times, this is some other integer m dash. Are you getting it? Yes, sir. So why you have taken 3m in the second step when you have put n equals to k? Because the induction hypothesis says that for n is equal to k, we suppose that it is divisible by 3. So if anything is divisible by 3, which is k cube minus 7k plus 3, then we can write it as a multiple of 3 also, 3 into m. For example, 12 is divisible by 3, so we can write it in 3 into 4. So it is a multiple of 3 actually. Any number which is divisible by 3, any number divisible by 3 can be written as 3m. Getting it? Okay, sir. Thank you. Welcome. Anyone having any doubt anywhere? I'm audible now. There is no problem for anyone to listen. Yes, sir, you're audible. Okay. आशीष, कौस्तुभ, तुम लोगों की आवाज सुने हुए काफी टाइम हो गया है. कौस्तुभ का तो मैसेज मुझे मिल गया था. आशीष एंड देवांश. Yes, sir. ओके. Yes, sir. ओके आशीष. So today the chapter which we are going to start is quadratic equations. Yes, sir. So I'm clearing this. Okay. Induction will not be used in this chapter, Ashish. Thank you, sir. So सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्लास 10th में किया था, पहले तो उसको हम एक एज अ रिकैप देखते हैं. व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बेसिकली ax² plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c are real numbers generally, is a quadratic equation and are constants. So these are called coefficient of x², coefficient of x, and the constant term. C is the constant, B is the coefficient of x, A is the coefficient of x². Now when we solve this we did in class 10th, right? So when we solve this, we get its two roots. Its two roots which come basically are denoted by alpha and beta. And the value of this is actually minus b plus minus root over b square minus 4ac upon 2a. ये याद है फॉर्मूला सबको? क्वाड्रेटिक का किया था हम लोगों ने क्लास 10th में. Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो One एक to a. प्लस, गुड, एक प्लस में होता है, एक माइनस में होता है.
तो इसलिए 2 रूट्स आते हैं इसके। अब इसमें फर्दर क्या है कि हम b स्क्वायर माइनस 4ac को शॉर्ट में डिनोट करते हैं कैपिटल D से, एंड इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। D इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। सो इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम D से इसको डिनोट कर रहे हैं तो माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर D बाई 2a। तो दीज आर द टू रूट्स, वन इज अल्फा वन इज बीटा, एंड तुम प्लस वाले को अल्फा ले लो या माइनस वाले को अल्फा ले लो, और जो दूसरा है उसको बीटा ले लो, तो देयर इज नॉट एन इशू इन दिस। अब इसमें 3 केसेस थे। एक केस ये होता था कि इफ दिस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, तो ऑब्वियसली ये जो स्क्वायर रूट ऑफ d है, दिस विल बी अ real number. Okay, so we say that alpha and beta basically are distinct and real roots of this quadratic equation. दूसरा केस क्या होता था कि अगर d की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, माइनस बी प्लस 0 बाई 2a। तो उस केस में अगर तुम d को 0 ले रहे हो, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ d को 0 ले लेता हूँ, तो माइनस बी प्लस माइनस 0 बाई 2a विच इज एक्चुअली माइनस बी बाई 2a। प्लस 0 करो या माइनस 0 करो, दोनों सेम ही चीज देगा, माइनस बी बाई 2a। तो हम कहते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर इक्वल एंड रियल रूट्स। यहां पर भी रूट्स रियल हैं लेकिन इक्वल है, मतलब अल्फा और बीटा सेम चीज है, दोनों माइनस बी बाई 2a है। तीसरे में अगर हम आते हैं तो d इज निगेटिव। अब यहां पर क्या है कि अगर इस स्क्वायर रूट के अंदर जो d है, ये वाला जिसको मैं इंसर्कल कर रहा हूँ, ये नेगेटिव हो जाता है, मान लो -3 है, तो उस केस में क्या होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूं फॉर एग्जाम्पल d को हमने ले लिया -3, और बाकी b और a भी कोई कांस्टेंट है, उसको मैं कुछ अभी ले नहीं रहा हूँ, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर -3 बाई 2a। तो ये जो रूट्स आ रहे हैं, ये रूट्स एक्चुअली इमेजिनरी होंगे, और ये हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर में। एक्चुअली तुम्हारे जो एनसीईआरटी में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स दोनों एक ही चैप्टर बना के दे दिया है, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही बहुत बड़े बड़े और अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो इन दोनों को हम लोग अलग अलग करेंगे। तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम कुछ टॉपिक करेंगे जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं कहीं पे इन्वॉल्व हो जाएगा, तो वो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो बेसिकली रूट ओवर -3 को हम क्या लिखते हैं, माइनस बी प्लस रूट ओवर 3 बाई 2a, और √3 को एक टर्म i से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कहते हैं आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि i जो होता है, आयोटा जिसको कहते हैं, दैट इज √1, ये एक इमेजिनरी नंबर होता है। ये तो सबको समझ में आ रहा है कि निगेटिव का स्क्वायर रूट इमेजिनरी क्यों हो रहा है। रीजन बीइंग कि अगर हम किसी निगेटिव का स्क्वायर रूट ले रहे हैं, जैसे -1 का स्क्वायर रूट ले रहे हैं, ठीक है, -1 की बात करते हैं, -1 का स्क्वायर रूट ले रहे हैं और बोलते हैं कि ये किसी x के बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि -1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही होगा इसका मतलब। Yes, sir. तो -1 एक्स स्क्वायर अगर है तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करने पे निगेटिव कभी नहीं आ सकता, स्क्वायर करने पे हमेशा पॉजिटिव आता है या मिनिमम 0 आता है जब x की वैल्यू 0 है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर अगर निगेटिव आ रहा है तो हम फिर कहेंगे कि x इज एन इमेजिनरी नंबर, और उसके लिए हम डिनोट करते हैं √1 को। सो आयोटा इज इक्वल टू √1 इज एक्चुअली एन इमेजिनरी नंबर, जिसके बारे में हम और थोड़ा पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में, लेकिन फिलहाल हमें बस इतना जानना है। तो क्या होगा कि जो अल्फा एंड बीटा जो होंगे, अल्फा एंड बीटा आर तो होंगे ही, आर इमेजिनरी रूट्स। यस, आर यू गेटिंग इट और नॉट? Yes, sir. Good Yes, Ayushi, sir. good Arushi. Rest.
आशीष इज सेइंग वॉइस इज नॉट क्लियर। आशीष में भी वेदर कंडीशन वगैरह भी इधर थोड़ा सा ये है, वीक है, उससे हो सकता है नेटवर्क का कोई इशू हो रहा हो। और तुम अपने साइड से भी देख लो, शायद उधर से भी कोई नेटवर्क का इशू हो सकता है। अगर सबको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो हो सकता है मेरे साइड से ही कुछ इशू होगा। लेकिन अगर बस तुम्हें नहीं क्लियर आ रही है तो मतलब फिर तुम्हारे साइड से इंटरनेट कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू होगा। बाकी लोगों को आ रही है मेरी नहीं आवाज? सर, क्लियर आ रही है। ओके, आरुषि को तो क्लियर आ रही है। ओके, तो आशीष में भी तुम्हारे तरफ से कुछ कनेक्टिविटी का कोई इशू हो रहा होगा, थोड़ा स्लो होगी कनेक्टिविटी। तो ये जो 3 चीज मैंने लिखी है, ये जो 3 केसेस लिखे हैं, ये हमने पढ़े हैं क्लास में 10th में भी। तो उसको मैंने एक तरह से रिकैप कर दिया तुम्हारे लिए। 3 केसेस बेस्ड ऑन द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव कब है, जीरो कब है और निगेटिव कब है। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना है कि ABC रियल नंबर्स हैं और कोई कांस्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ इसका भी ध्यान रखना कि जो A है दैट विल नेवर बी जीरो, क्योंकि अगर A जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, फिर ये लीनियर बन जाएगी। तो इसलिए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है A, वो जीरो नहीं हो सकता है, B जीरो हो सकता है, C भी जीरो हो सकता है। क्योंकि अगर हम A को जीरो बना देंगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म ही गायब हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, फिर लीनियर रहेगा। यस सर। गेटिंग इट? Yes, यस sir. सर। Okay. So when you will note this down, tell me, I will erase all of this. सर डन। Okay, Arushi. Done. Okay, Ashish. Ashish, now it is audible, clear? Yes, sir. So what happens now is that अगर मान लेते हैं कि तीसरा वाला केस आ रहा है, मतलब केस थर्ड क्या था कि डिस्क्रिमिनेंट जब निगेटिव होगा तो इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो वो इमेजिनरी रूट्स किस तरीके के होंगे ये भी हमें ध्यान में रखना है। What you will observe that the form is minus b plus minus root over d by 2a, where of course d is equal to b square minus 4ac। तो यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और ये जानते हैं कि जो d है दैट इज निगेटिव, तो ये इस फॉर्म का आएगा p प्लस माइनस, p मतलब माइनस b बाई 2a इज p, और q इंटू आयोटा। ठीक है, तो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जब हम पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि p प्लस आयोटा q एंड p माइनस आयोटा q जो होगा, these are called complex conjugates of each other। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं तुम्हें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ हियर वी वांट टू फाइंड इट्स रूट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है। डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 4, ए का मतलब है 1 और सी का मतलब है 3।
ये हो जाएगा 4 माइनस 12 विच विल बी माइनस 8 विच इज नेगेटिव एक्चुअली। तो डिस्क्रिमिनेंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें, अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं तो इस एग्जांपल में जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज एक्चुअली नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे तो उनको निकाल लेते हैं। तो अल्फा बीटा दीज टू रूट्स आर एक्चुअली, एक को अल्फा ले लो एक को बीटा ले लेना, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम किसी को भी ले सकते हो। तो ये होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a। तो माइनस बी मतलब 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑफ माइनस 2 है, प्लस माइनस रूट ओवर डी अगर लेंगे तो माइनस 8 रूट के अंदर है और नीचे 2a, a की वैल्यू 1 है, a इज 1। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं 2 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 8 को 2 रूट 2 लिख सकते हैं और माइनस 1 जो रूट में उसको आयोटा लिख सकते हैं बाई 2। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो ऊपर से भी और नीचे से भी, तो 1 प्लस माइनस रूट 2 आयोटा। तो ये मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिखाया है जिसमें कि दो रूट्स जो हैं, एक 1 प्लस रूट 2 आयोटा है, एक 1 माइनस रूट 2 आयोटा है। मतलब अगर तुम इससे कंपेयर करोगे कि p प्लस आयोटा क्यू और p माइनस आयोटा क्यू, तो तुम देख सकते हो कि इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल वी आर गेटिंग p एज 1 एंड q एज रूट ओवर 2। आर यू गेटिंग इट? Yes, Yes, sir. sir. गुड। तो ये एग्जांपल भी नोट कर लो। और ये जब इमेजिनरी रूट्स होते हैं तो दे आर एक्चुअली कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। वी हैव ऑब्वियसली टेकन ए बी सी एज रियल। ये जब होगा तभी ये पॉसिबल है, तो इसका ध्यान रखना। ए बी सी तीनों रियल है, मतलब जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स स्क्वायर एक्स के और जो कांस्टेंट है तीनों रियल है। तो सर हमने ये अंडर रूट 8 के माइनस को आयोटा कैसे लिख दिया? अंडर रूट माइनस 1 को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स में डील करते हैं और उसको आयोटा से डिनोट करते हैं। इट इज एन इमेजिनरी नंबर। ये जो रूट ओवर माइनस 8 है ना, ये रूट ओवर Yes, sir. माइनस 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट ओवर 8 इंटू रूट ओवर माइनस 1। रूट ओवर 8 इज 2 रूट 2 एंड रूट ओवर माइनस 1 को हम आयोटा से दिखाते हैं। दिस मीन्स दिस इज अ सिंबल फॉर रूट ओवर माइनस 1 एंड दिस इज एन इमेजिनरी नंबर। Okay, sir. सर यहाँ पर जब आपने लिखा है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में वैल्यूज अलग आएंगी, इसीलिए आपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स लिखा। हाँ, वैल्यूज अगर अलग तो आएंगी ही। एक p प्लस आई क्यू है, दूसरा p माइनस आई क्यू है, वैल्यूज तो अलग हैं, लेकिन ये है कि दोनों का जो p है यहाँ पर वो सेम है और ये q सेम है, बस बीच में प्लस की जगह माइनस हो जा रहा है। जैसे तुमने यहाँ पे देखा ना, 1 प्लस रूट 2 आयोटा भी आ रहा है, 1 माइनस रूट 2 आयोटा भी आ रहा है। सो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा। एक हो गया 1 प्लस रूट 2 आयोटा और एक हो गया 1 माइनस रूट 2 आयोटा। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर है। ओके सर। आयोटा के ऊपर तो पूरा एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लेकिन अभी हम लोग उतना ही देख रहे हैं आयोटा के बारे में जितना हमें क्वाड्रेटिक में रिक्वायर्ड है। फिलहाल तुम्हें बस यही समझना है कि आयोटा का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ -1 विच इज एन इमेजिनरी नंबर। Yes, sir. Done. ओके, Sir, done. ओके। एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, मैं बताऊंगा नहीं, पहले तुमसे पूछूंगा कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के 3 डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाते हैं तो उसका क्या मतलब है? पहले तो ये बताओ कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके क्या 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हो सकते हैं? नो सर। नहीं हो सकते, जब भी होंगे 2 होंगे।
ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक होती तो उसके मैक्सिमम 3 होते हैं, बाई क्वाड्रेटिक होती तो उसके मैक्सिमम 4 होते हैं। तो जो भी डिग्री ऑफ द इक्वेशन होती है उतने ही उसके रूट्स भी होते हैं। अब उसमें अलग है कि कुछ रियल होंगे कुछ इमेजिनरी होंगे, लेकिन रूट्स उतने ही होंगे जो डिग्री ऑफ द इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके क्वाड्रेटिक में 2 रूट्स होने चाहिए थे, लेकिन इसमें लिखा हुआ है 3 रूट्स। तो इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? कैन यू टेल मी? इसका मतलब ये है कि दिस इज एन आइडेंटिटी। ये इक्वेशन नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है, ये हमेशा ट्रू होगी। और ये हमेशा ट्रू तभी होगी जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट तीनों 0 होंगे। तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0। अब तुम x की 3 क्या 1000 वैल्यू भी ले लोगे तो सारे के सारे इसको 0 ही बनाएंगे। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. So, but Yes, sir. x square का coefficient cannot be equal to 0, then how हाँ, it तो is वो तो possible? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है ना। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा नहीं, ये आइडेंटिटी बन गया है। दिस इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ही यहाँ पर ये बोला गया कि इसके 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो ये अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते हैं, वी विल कॉल इट आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी क्या होती है? हमेशा ट्रू होती है। वो किसी पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए नहीं होती है, एक्स की किसी वैल्यूज के लिए नहीं होगी, वो हमेशा होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है बी के एक्स के साथ जो है, और जो कांस्टेंट है तीनों के तीनों 0 होंगे, तब जाके ऑलवेज दिस विल बी 0। गेटिंग इट? अब तुम Yes. x को Yes, कुछ sir. भी ले सकती हो। इट इज नो मोर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ही हमने कह दिया कि इसके 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो दिस इज नो मोर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस बिकम्स एन आइडेंटिटी। Okay, sir. There is a question for you. Let a greater than 0, b greater than 0 and c greater than 0. Then prove that both the roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 have negative real parts. Just try it once. आज मैंने एक एलिफेंट की स्टोरी, आज नहीं 1-2 दिन पहले एलिफेंट की स्टोरी सुनी थी, वो तुमसे मैं थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। और इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि काफ़ी कुछ वो स्टोरी से हम लोग को सीख मिलती है, और हो सकता है तुम में से कई लोगों ने वो स्टोरी सुनी भी हो। तो आई वुड ऑल्सो टेल यू अ स्टोरी नाउ कि उसमें क्या है कि इट इज़ नॉट अ बिग स्टोरी, बहुत छोटी स्टोरी है। ऐसी एक इंसिडेंस है कि there is an elephant, and that elephant was actually tied by a rope to a to some place. It was tied by a rope to some place, maybe some uh, tree or something maybe. And the rope was very light rope. In front of the elephant's power, the rope was not so strong that in front of the elephant's power it will maintain itself or survive. If the elephant would try to get out of that foundation through that rope, he could easily go out of that rope by applying his force. But he was not doing that. And there was a person who was passing by and seeing that the elephant is not getting out of the rope, and nor he is trying to get out of the rope.
So he asked the person who was there taking care of the elephant that why is it so that this elephant is not getting out of the rope? This is a very light and simple rope. He can easily break it and go out. But there is a reason which the old man with the elephant told that passerby. Do you know what was the reason? Can you guess or do you know? No, No, sir. sir. No idea. Okay. So the reason was that basically when that elephant was very small, a baby, then the old man used to tie him with the help of the rope. And that time he was unable to break the rope. And because he was a baby, very small, so the rope was, then it came to his mind from the childhood only that the rope is something which cannot be broken. So when he grew old, he was still tied by that simple rope, and but still he never used to try to break it because he used to think that okay, once I've tried a lot and I could not break it, so it is unbreakable. But if he would have tried it again and again and again, and when he became elder and elder, then he would have broken that rope. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर अस. हम लोग क्या करते हैं कि लाइफ में जैसे तुम अभी 11th में गए हो और 11th में जाने के बाद बहुत सारी क्वेश्चंस, बहुत सारी थ्योरीज ऐसी हैं जो तुम्हें बहुत डिफिकल्ट लग रही होंगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद 2-4 महीने 11th में रहोगे क्योंकि 10th से 11th में जाने में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, बहुत लेवल का फर्क हो जाता है. तो जब थोड़ा टाइम के बाद तुम एडजस्ट हो जाओगे ना तो तुमसे सब कुछ होने लगेगा. तो ये मेंटेलिटी कई लोग बाद में भी रख लेते हैं कि अरे मेरा ये पोर्शन वीक है, मेरा ये पोर्शन वीक है, मेरा ये सब्जेक्ट वीक है. ऐसा कुछ नहीं होता. ये अभी मोमेंट है. अभी तुम्हारा हो सकता है कोई चीज वीक हो, 6 महीने बाद ये दिमाग में मत बैठाना कि मेरा वीक है. ठीक है, दिमाग में कभी ये नहीं आना चाहिए कि मुझसे नहीं हो सकता या मेरा ये पोर्शन वीक है. आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. ओके आरुषि. Yes. Yes, Yes, sir. sir. तो कीप योर, डोंट बिकम अ साइकोलॉजिकल स्लेव ऑफ एनीथिंग. मतलब पढ़ाई से रिलेटेड बात करें तो इसका काफी क्लियर कट एग्जांपल पढ़ाई में दिखता है हमें कि हम कई बार अपने साइकोलॉजिकल स्लेव बन जाते हैं. तो जब हम साइकोलॉजिकल स्लेव बन जाते हैं तो हम जो है अपने आप को बाउंड कर लेते हैं. कोई हमें बाउंड नहीं कर रहा, हम ही अपने आप को बाउंड कर रहे हैं कि हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते. नहीं तो कैपेबिलिटीज हमारी हमेशा बढ़ती रहती हैं और हम ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं. तो ये मत सोचो कि आज जो हम नहीं कर पा रहे हैं वो कल भी नहीं कर पाएंगे. So keep trying and don't get frustrated at any moment of your preparation. Thank you, sir. Welcome, Arushi. So when we talk about this particular question, तो both the roots of the equation have negative real parts. ठीक है, तो इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो क्या होगा? वो होगा -b प्लस रूट ओवर b² माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा क्या होगा? -b माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बाई 2a. तो इसमें क्या केस बनाना है तुम्हें? केस 1, जब डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac जो है, ध्यान से देखते रहना, जब ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर सब कुछ रियल होगा, कोई इमेजिनरी होगा नहीं, क्योंकि तुमने डिस्क्रिमिनेंट को क्या माना है? पॉजिटिव माना है. Yes. तो अब क्या है कि अगर हम इस केस की बात करें तो एज यू कैन सी दैट -b जो है, ये जो -b है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है. दिस -b इज नेगेटिव because it is given that b is positive, which means -b is negative. उसके आगे माइनस लगा दोगे तो नेगेटिव हो जाएगा. और b² माइनस 4ac जो है, दिस b² माइनस 4ac जिसकी स्क्वायर रूट के अंदर है, उसको अगर तुम कंपेयर करते हो b से, तो व्हाट विल हैपन कि सिंस a इज पॉजिटिव एंड c इज पॉजिटिव,
तो 4ac ये तीनों टर्म पॉजिटिव है। अब बी स्क्वायर से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या सब्ट्रैक्टिंग अ पॉजिटिव टर्म फ्रॉम बी स्क्वायर और उसका रूट ले रहे हैं, तो एक्चुअली ये मैग्नीट्यूड वाइज बी से छोटा होगा या नहीं होगा? जस्ट सी, देखो अगर तुम दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन बी स्क्वायर, यही हो रहा है। रूट यहाँ से हटेगा, इधर स्क्वायर बनेगा, बी स्क्वायर को कैंसिल करो, माइनस 4ac इज नेगेटिव। तो क्या माइनस 4ac नेगेटिव है? हाँ है, क्योंकि 4 भी पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है, c भी पॉजिटिव है, तो आगे में जो माइनस साइन लगा है उसकी वजह से ये नेगेटिव हो गया। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। करेक्ट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो अंडर रूट हमने यहाँ पे लिया, दैट इज एक्चुअली स्मॉलर देन b, वो b से छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस b प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो एक निगेटिव टर्म होगा, क्योंकि जो b है वो मैग्नीट्यूड वाइज बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा है, और इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो ओवरऑल वैल्यू माइनस में हो जाएगी। और माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac तो निगेटिव होगा ही होगा। अब बचा नीचे का 2a, तो जो a है दैट इज ऑल्सो गिवन एज पॉजिटिव। तो अगर हम इसको 2a से डिवाइड करेंगे तो इसके साइन में कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज a इज ऑलरेडी पॉजिटिव, तो ये साइन को चेंज नहीं करेगा। और ये हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a विच विल ऑल्सो बी नेगेटिव। तो एक्चुअली दोनों ही रूट्स कैसे आ रहे हैं? निगेटिव आ रहे हैं। तो ये दोनों रूट्स तो हमने केस 1 में लिया है जब इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। ये केस 1 का एक्सप्लेनेशन है। अब हम केस 2 में आएंगे, फिर उसके बाद केस 3 में भी आएंगे। तो केस 1 वाले में हमें दिख रहा है कि जो दोनों रूट्स हैं, दोनों रूट्स रियल हैं और दोनों रूट्स निगेटिव हैं। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। ओके आयुषी। यस सर, हो गया। सर एक बार फिर से बता दीजिए। यस सर, रिपीट कर दीजिए ऊपर। अच्छा रिपीट कर देता हूँ। इसमें जहां पे तुम्हें दिक्कत हो रही होगी ना, वो ये समझने में हो रही होगी, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। एक तो ये समझो कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट है वो b से छोटा होगा, क्योंकि तुम सोचो ना, b का स्क्वायर करके उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट किया गया है, उसमें से कुछ निकाला गया है, फिर उसका स्क्वायर रूट लिया गया है, तो ऑब्वियसली वैल्यू b से तो छोटी हो जाएगी। होगी या नहीं होगी, पहले ये बताओ। यस सर। यस सर। अब जब ये छोटी होगी तो अगर हम इस न्यूमरेटर की बात करें, जो न्यूमरेटर यहाँ पर है, तो इसमें जो b है ये इससे बड़ा है। दिस b इज ग्रेटर देन रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसके आगे लगा हुआ है माइनस साइन। तो मतलब ओवरऑल माइनस प्लस में जब हम करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू माइनस आएगी। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। सो दैट इज व्हाई इट इज नेगेटिव। और नीचे वाला तो हर हाल में ही नेगेटिव होगा, क्योंकि माइनस बी नेगेटिव है और उससे दूसरे वाले को भी माइनस कर रहे हैं, तो माइनस माइनस करने पे ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो दोनों ही रूट्स एक्चुअली नेगेटिव आ रहे हैं। 2a से हम डिवाइड करके भी चेक कर ले रहे हैं, तो a इज पॉजिटिव, इसका मतलब यह है कि डिवाइड करने पे साइन चेंज नहीं हुआ, स्टिल इट इज नेगेटिव। इज दिस क्लियर? यस सर। अल्फा और बीटा दोनों रूट्स नेगेटिव हैं। तो इसको अपने लैंग्वेज में भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, जहां पर भी ये लिख रहे हो, जो मैंने ओरली बोला है उसको अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना। अभी हमने बस केस 1 किया है, व्हेन द रूट्स आर रियल। अभी केस 2 और केस 3 भी करेंगे। जैसे इसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि तुमने क्या किया कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 का अंडर रूट लिया है, तो ये जो है 3 से छोटा होगा। क्या रीजन हो गया इसका? इसका रीजन सिंपली ये है कि तुमने 3 को स्क्वायर कर दिया और किसी चीज को उसमें से कम करने के बाद उसका स्क्वायर रूट लिया, डायरेक्ट नहीं लिया, तो एक्चुअल वैल्यू से वो कम हो गया।
Getting it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Done. ओके, तो अब हम आ जाते हैं केस 2 में। ये मैं पूरा इरेज कर दे रहा हूँ। केस 2 क्या होता है कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, उस केस में जो रूट्स होते हैं अल्फा बीटा वो होते हैं सेम -b/2a, क्योंकि d 0 हो गया तो प्लस रूट ओवर 0 इज 0, तो दोनों इक्वल रूट्स होते हैं। पहला भी -b/2 है, दूसरा भी -b/2 है। तो इन दोनों को अगर हम देखें कि अगर हमने a को पॉजिटिव ले रखा था, b को पॉजिटिव ले रखा था, c को भी पॉजिटिव ले रखा था, तीनों कॉन्स्टेंट्स पॉजिटिव थे, तो b इज ऑल्सो पॉजिटिव, a इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो माइनस आगे लगा हुआ है तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव हो जाएगी। एंड सेम थिंग इज विद दिस, क्योंकि इक्वल है। सो बोथ रूट्स आर निगेटिव, मतलब इसका रियल पार्ट निगेटिव हो गया। रियल रूट्स तो हैं ही, लेकिन इसको क्या कहेंगे, बोथ रूट्स आर निगेटिव मींस रियल पार्ट निगेटिव एंड रियल है ना, इज निगेटिव। अब हम आते हैं केस 3 में, जबकि डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा। तो उस केस में क्या होगा कि अल्फा और बीटा अगर हम लेते हैं तो -b प्लस रूट ओवर d/2a होगा एक, और एक -b माइनस रूट ओवर d/2a होगा। अब d इज नेगेटिव, तो मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो है माइनस साइन है, तो उसको हम आयोटा में लिखने के बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करते हैं या ऐसे ही रखते हैं, -b/2a प्लस आयोटा क्यू बोल देते हैं, और ये वाला हो जाएगा -b/2a माइनस आयोटा क्यू। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो जो रियल पार्ट है दोनों का, वो रियल पार्ट -b/2a है, और जो दूसरा पार्ट है दैट इज एन इमेजिनरी पार्ट, उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में रियल पार्ट के बारे में पूछा जा रहा है। और अभी हमने ऊपर ही में देखा है कि -b/2a कैसा टर्म होता है, निगेटिव टर्म होता है। यहाँ पर जहाँ पर a पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है, c भी पॉजिटिव है, तो विल से दैट रियल पार्ट्स आर निगेटिव। आर यू गेटिंग इट? Yes. गुड। यहाँ पे q क्या है, वेयर q इज इक्वल टू iota q, actually iota q is equal to रूट ओवर d/2a। आयोटा क्यों आया, क्योंकि d निगेटिव है और वो स्क्वायर रूट के अंदर है। So write this down also. Sir, done. क्या ऋषि? Another thing which we studied in class 10th itself, that was the relation between the roots
एंड द कोफिशिएंट्स। अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो इसके जो रूट्स हैं अल्फा बीटा, अगर हम इसका सम करते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी -b/a, और अगर इसका प्रोडक्ट करते हैं दैट कम्स आउट टू बी c/a। डू यू रिमेंबर दिस रिलेशन? यस सर। गुड। मैं इसको डिराइव नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, करने को तो डिराइव करना कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे एक अल्फा हो गया वो -b + √b² - 4ac, जिसको हम d कहते हैं, अपॉन 2a हो गया। एक बीटा हो गया -b - √b² - 4ac/2a हो गया। अब दोनों को ऐड करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो व्हाट विल हैपन कि यहाँ पर 2a तो दोनों के नीचे है, तो एलसीएम 2a हो जाएगा, और -b और -b तो -2b हो जाएगा, और ये जो है प्लस में है और ये जो है माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो दिस विल बी -b/a। और अगर हम दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो दोनों को मल्टीप्लाई जब करोगे तो देखना कि दिस इज a + b, दिस इज a - b, तो a² - b² की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो दिस विल बिकम -b² माइनस √b² - 4ac/² अपॉन 2a × 2a इज 4a², तो ये हो जाएगा b² माइनस, यहाँ से रूट हटेगा, b² + 4ac/4a² हो जाएगा, तो -b² + b² चला गया, 4ac/4a² बचेगा लास्ट में c/a। दिस इज व्हाट वी हैव रिटन हियर, c/a। गेटिंग इट? Yes, sir. ओके, so write this down also, all these calculations. सर डन। Okay, good. Let us see few questions based on this. थोड़ा सा ये वाला जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन इट इज ओके, थोड़ी कैलकुलेशन हमें करनी है प्रैक्टिस, क्योंकि अब जैसे जेई का लेवल हो रहा है उसमें कैलकुलेशन काफी इन्वॉल्व हो गई है। पहले तो कैलकुलेशन उतना चेक नहीं करते थे, कंसेप्ट चेक करते थे, अब तो कॉन्सेप्ट के साथ कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा हो गई है। इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स of equation 6x² - 6x + 1 = 0, then prove that (1/2) try to do this.
देवांश, आयुषी, आयुषी, आशीष, कौस्तुभ एग्जिट करिए। कौस्तुभ जनरली बीच में चला जाता है फिर ज्वाइन करता है। कर लेना तो बता देना, देन वी विल डिस्कस। हिंट मैं दे देता हूं, इसको तुम जब एक्सपैंड करना ना तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ दीज टू टर्म्स उनको एक साथ ले लेना। जैसे ये ए है, ये भी ए है, तो हाफ ए प्लस ए। ये बी अल्फा है, ये बी बीटा है, प्लस हाफ बी कॉमन लेके अल्फा प्लस बीटा। फिर उसके बाद सी अल्फा स्क्वायर है, सी बीटा स्क्वायर है, और हाफ तो है ही सी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फिर हाफ डी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो इसको इस तरीके से लिखना है। गेटिंग इट? यस। ओके। अब यहाँ पर जो a प्लस ए है वो 2a होगा, 2a/2 मतलब a बचेगा। ये है b/2, अल्फा प्लस बीटा इज एक्चुअली माइनस b/a। तो एज यू कैन सी ओवर हेयर कि अल्फा प्लस बीटा जो है व्हाट इज दैट, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा बी प्लस बीटा इज माइनस b/a। तो माइनस b/a का क्या मतलब हो गया? माइनस ऑफ -6/6, तो ये 1 हो गया। सो अल्फा प्लस बीटा इज 1। फिर हम आते हैं, दिस इज c/2, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पे आते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज नथिंग बट एक्चुअली अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा 1 था तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? c/a विच इज 1/6। So this will be finally 1 minus 1/3, that will be 2/3. We will write it as 2/3. यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। गुड। उसके बाद हम आ जाते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये जो मैं निकाल रहा हूँ वैल्यूज, ये अलग अलग बॉक्स में डाल देता हूँ, तो तुम इसको जो है कॉपी में उसी तरीके से नोट करना। तो अब अगली वैल्यू क्या है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला पता है सबको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का? यस सर। गुड। सो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का क्यूब क्या हो गया? 1 का क्यूब -3 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा हो गया 1/6। दिस इज 1/6। और अल्फा प्लस बीटा क्या था? वो 1 था। तो ये फाइनली आ जाएगा 1 माइनस 1/2 विच इज 1/2 फाइनली। तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज 1/2। तो फाइनली जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है a प्लस b/2 प्लस ये 2 कैंसिल कर देते हैं, प्लस c/3 प्लस d/, यही हमें प्रूव करना था। दिस इज व्हाट वी गेट। थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व था, लेकिन ये है कि तुम्हारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह का एप्लीकेशन कैसे होगा वो क्लियर हो जाता है। कौस्तुभ, तुम बीच बीच में कहाँ एग्जिट कर जाते हो?
लिख लेना तो बता देना। ओके आरुषि, now I'm erasing this and giving you another question. The question says alpha and beta are the roots of the equation a minus 2 x square minus 5 minus a x minus 5 equal to 0. Find a if mod of अल्फा माइनस बीटा, मॉड क्या होता है याद है ना, जो उसको पॉजिटिव बनाता है, इज इक्वल टू 2√6. First try, then we'll discuss.
कैसे अप्रोच कर रहे हो वो मुझसे डिस्कस भी कर सकते हो। देखो एक जो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होने वाला है वो मैं तुम्हें जरूर बता देता हूँ। दिस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है उसको तुम जब ओपन करते हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होगा। अच्छा अगर तुम यहाँ पर इसको ऐसे लिख दो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, तो देर इज नथिंग रॉन्ग, 2 माइनस 4 इज माइनस 2 आ जाएगा। इससे क्या होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टर्म है वो एक्चुअली अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया और माइनस 4 अल्फा बीटा जो है वो एक है। अब यहाँ पर से स्क्वायर हटा दोगे तो स्क्वायर हटाने पे अल्फा माइनस बीटा का मॉड लिखोगे। ये हमेशा याद रखना कि एक्स स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो एक्स नहीं होता है, वो मॉड ऑफ एक्स होता है। मैंने पहले भी बताया होगा, तुम लोगों को याद होगा शायद। एक्स स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो दैट इज नॉट एक्स, दैट इज मॉड ऑफ एक्स, मतलब हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो जब तुम इसका स्क्वायर रूट लोगे दोनों साइड तो ये मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हम निकाल सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो हमें दी हुई है। सम ऑफ द रूट्स इसमें से निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स, और जो दूसरा है अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा। Now you can proceed further. इसके बाद ये क्या हो गया, रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स है ना, तो माइनस बी बाई ए का फॉर्मूला लगेगा, तो 5 माइनस ए अपॉन ए माइनस 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 अल्फा बीटा जो है सी बाई ए होगा, वो हो जाएगा माइनस 5 बाई ए माइनस 2। तो दिस वुड बी, अब हम अगर एलसीएम लेते हैं तो नीचे में तो ए माइनस 2 होगा ही, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 20 इंटू ए माइनस 2। आई होप ये कैलकुलेशन वगैरह सबको क्लियर समझ में आ रही है। अब जब इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे, अब मैं थोड़ा मेंटली कर ले रहा हूँ, तो ऊपर में ए स्क्वायर बचेगा माइनस 10a प्लस 20a प्लस 10a हो जाएगा, और माइनस 40 प्लस 25 वो हो जाएगा माइनस 40 प्लस 25 आ रहा है ना, तो माइनस 15 हो जाएगा ये तो। अपॉन ए माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आ रहा है। अब तुम्हें क्या दे रखा है कि अल्फा माइनस बीटा का जो मॉड है वो 2√6 है, तो इस फैक्ट को यूज करना है कि दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 2√6। तो अब मैं क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ। And when we proceed further,
तो ये जो है यहाँ से ये वैल्यू इसके बराबर है, तो दोनों को स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 10a माइनस 15 अपॉन a माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरे साइड स्क्वायर करेंगे तो 24 आ जाएगा। दिस वुड मीन a स्क्वायर प्लस 10a माइनस 15 इज इक्वल टू, इधर भी ओपन कर दो तो 24a स्क्वायर आएगा और माइनस 4 इंटू 24 96a हो जाएगा प्लस 96 हो जाएगा। ये सब कैलकुलेशन आई होप तुम कर लोगे। तो ये फाइनली हो रहा है 23a स्क्वायर माइनस 106a प्लस 111 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और उससे a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आई एम गिविंग यू 2 more minutes so that you can simplify this. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा तुम्हें वो लगाना पड़ सकता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाओगे ना तो ये होगा 23a स्क्वायर, इसको लिख दो माइनस 69a और इधर लिख दो माइनस 69 और माइनस 37a प्लस 111 इक्वल टू 0। इसके बाद 23a कॉमन होगा, a माइनस 3 बचेगा इन दोनों में से, फिर यहाँ से माइनस 37 कॉमन होगा और ये a माइनस 3 बचेगा इक्वल टू 0, जिससे a माइनस 3 इंटू 23a माइनस 37 इक्वल टू 0 होगा। इससे a की वैल्यू 3 आ सकती है और दूसरी आ सकती है 37 बाई 23। तो दीज आर द टू आंसर्स। Are you getting this? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Ashish. Okay, Arushi. Okay, Arushi. देवांश डिस्कनेक्ट हो गया।
तो अभी हमारे पास 10 मिनट हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इसमें थोड़ा तुम लोगों के साथ इंटरेक्ट करूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आरुषि से, और अपना ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन कर लेना, फिर उसके बाद ऑफ कर देना जब इंटरेक्शन हो जाए। तो आरुषि, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो एंड ऑडियो। क्या हो गया आरुषि, लगता है एग्जिट कर लीजिए। चलो लेट अस कम टू आयुषी। Yes, Ayushi, how are you finding the classes? So the classes are good. Classes are good. You are practicing also at home. Yes, sir. Good, good. So, in which school are you and from which city are you? Sir, I am from Rudrapur and I study in Delhi Public School only. Udaipur. Okay. Rudrapur. Rudrapur. Okay, Rudrapur. Okay, nice. Let us come to Ashish now. Ashish, switch on your audio and video both. Yes, sir. Yes, Ashish, how are you finding the classes? Sir, nice. Nice. Okay, good. So, any feedback or anything you want to tell about your own experiences with the Learnivos? Sir, experience is good. Okay. Which school and which city do you? Sir, I'm from Pantnagar, Uttarakhand. Okay, And Pantnagar, Uttarakhand. Right, right. There is a yes. Pantnagar Agriculture University which is quite Yes, sir, famous. yes, sir, yes, sir. Yes, sir, yes, sir. Nice, nice. Okay, let us come to Kaustubh now. Yes, Kaustubh. तुम्हारा लगता है वीडियो ऑडियो कुछ नहीं चल रहा है, सुनाई तो दे रहा होगा ना? मैं रिस्पॉन्ड कर दो चैट पे। कौस्तुभ, कैन यू इंटरेक्ट? एनीवेज, तो वी विल कीप इंटरेक्टिंग, और तुम भी अपने साइड से कभी ऐसा इंटरेक्शन लगता है कि तुम्हें करना है तो तुम बोल दिया करो, और हम लोग जो है थोड़ा सा एक दूसरे को जानने की और कोशिश करेंगे, क्योंकि बिकॉज क्या है कि एक टीचर और स्टूडेंट का बाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लासरूम में तो ये आ जाता है, लेकिन अगर हम लोग ऑनलाइन में हैं तो इसको आने में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो धीरे धीरे आ जाएगा। तो इफ यू हैव एनी facing any problem, anything related to studies, related to your strategy of studies, related to your own problems also, which are personal, you can discuss with the teacher, and we are here to help you out from any situation. Is it okay? Yes, sir. ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग कंक्लूड करते हैं। Okay, we will do graphs in the next class.